a total of 7 seats to cover across 6 states. And amid the prestige battle, BJP's Bhavya Bishnoi has won the Adampur constituency in Haryana. In fact, Bishnoi defeated Congress candidate Jaiprakash JP by nearly 16,000 votes. So a margin of 16,000 votes that was breached by the BJP candidate Bhavya Bishnoi, who's won the Adampur constituency. So certainly, once again, this is turning out to be in favor of the BJP in Haryana, and the BJP candidate has won the Adampur constituency in these by-elections in Haryana. And those are the visuals that we've picked up from Adampur. Some of the BJP supporters and workers, they're celebrating the victory of the BJP candidate in Adampur. That's Bhavya Bishnoi, and a margin of 16,000 votes is what we are being told. So once again, this is yet another constituency that has been backed by a BJP candidate. Apart from Gola Gokarnath, Adampur and Gopalganj are the three BJP seats which have been backed by the BJP in these by-elections. So that's what the trends at the moment do reveal. And let me go across to Sabyasachi joining us with more details. We're being told that the gap between the BJP candidate and that of the Congress was almost 16,000. That's a big margin. Sabyasachi, what more can you tell us? Well, absolutely. See, it's a very big margin, and Bhavya Bishnoi has won with a margin of around 16,600 votes. And this time around, it was a battle of prestige for the Bishnoi family, because this particular constituency is the stronghold of their family. They have been retaining this constituency since 1968. And also, Bhavya Bishnoi, who also fought the 2019 Lok Sabha polls, but he lost on Congress ticket. So this time around, he has to prove himself, and also had to make sure that he maintains the name of his family in this particular area. And also, if you talk about the Haryana bypoll, it was also overshadowed by the controversy of Ram Rahim as well. I have few supporters with me. We'll get to know what is the pulse on ground. Sir, सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आज भव्य बिश्नोई जीते हैं करीबन 6,000 से ज्यादा वोटों से, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थोड़ा सा गलत बोल गए। 16,606 वोटों से भव्य बिश्नोई जीते हैं, आपने 6,000 बताया, चलो मिस्टेक होगी। भव्य बिश्नोई जी 16,606 वोटों से जीते हैं, और ये जीत भव्य बिश्नोई की नहीं, ये जीत आदमपुर की जीत है, पूरे हरियाणा की जीत है, पूरे देश की जीत है, पूरे देश की जीत है। इस सीट पर पूरे देश की नज़र थी, पूरे हरियाणा की नज़र थी, राजस्थान हो चाहे यूपी हो चाहे पंजाब हो, सब लोगों की निगाह भरी निगाहें चौधरी बंदलाल जी परिवार की तरफ थी कि इस सीट पर। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके वर्कर हैं, हमें पता रिजल्ट क्या रहेगा, बट जो विपक्ष वाले थे वो इस बात को नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे ये गढ़ कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती है। चलिए, मैं सर आपसे ये पूछूंगा कि ये गढ़ जो है ये कांग्रेस का था, क्योंकि पहले ये परिवार कांग्रेस से लड़ती थी, इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ी है, बट इस साल भी विजय हुई है, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है जी, ये परिवार एक ऐसा परिवार है, हर गरीब को, हर कमजोर को, हर मजदूर को, सबको साथ लेके चलता है। ये परिवार जहाँ जाएगा वहीं हम इनके साथ हैं। आज से नहीं, हम बहुत सालों से इनके साथ हैं। ये गरीब की सुनते हैं, गरीब का हर तरह से मदद भी करते हैं, और ये किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, हमने पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये परिवार हमें अपना परिवार मानता है, हम इनको अपने परिवार का मानते हैं। इसलिए जहाँ भी जाएं हम शुरू से और आखिर दम तक इनके साथ रहेंगे, ये हमारा वादा भी है, और बिल्कुल हम कभी भी इनसे पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक ये जहाँ भी जिस क्षेत्र से भी जाएंगे, वैसे देखा जाए मैं भिवानी से हूँ, अलका भवानी खड़ा अलका अध्यक्ष हूँ, लेकिन आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपके पास यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इस जीत की बधाई जो है मैं पूरे हल्के को, पूरे हरियाणा को देता। सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि पूरे इलाके के लिए कितना मायने रखता है कि एक परिवार जो 1968 से इस क्षेत्र में है, जीतता आ रहा है, आज फिर से उनके पोते जीत चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये आगे आप हल्के में और ज़्यादा काम करेंगे। 2 साल पड़े हैं, युवाओं को नौकरी भी देंगे, और सारे जहाँ सड़क टूटी पड़ी है या और है नाली है और जो किस और काम बचे हुए हैं वे सारा पूरा करवाएंगे जोर जोर से, और अच्छा काम करेंगे। और आगे
बढ़ चढ़कर इससे भी ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। कोई कैंडिडेट इसके बराबर आएगा वो टिक नहीं पाएगा। Sir, well, you heard that they are quite happy with the win. We have some other people as well. We'll try to get their reaction. Sir, ये पूछूंगा कि ये जो हरियाणा में जो बाईपोल्स के चुनाव थे, बट ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा था कि बाबा राम रहीम को क्यों चुनाव से पहले ही पेरोल मिली गई। ऐसा है जी, इस विषय में हम तो एक बात कहते हैं, ये संत जो है ना जी, कई संत तो जेल में पड़े हैं जी, जो किसी की परवाह नहीं करते, ना कांग्रेस की करते हैं, ना रूलिंग की, ना विपक्ष की। ठीक है सर। So there you heard that this is a pulse that we are getting from ground from Adampur. The seat has been retained by the Bishnoi family, and clearly they have gone to visit their constituency. They say that it is a new era that the Bishnoi family is in under the leadership of BJP. So while the Bishnoi family is resorting to these kind of celebrations, and this is how they are looking at this victory, remember, this comes at a time that Gurmeet Ram Rahim's parole is being questioned and was directly linked to the Adampur by-poll. So that's going to be an interesting angle to look at, and whether or not the BJP did benefit from the same or not. Let's listen into what the family members of the Bishnoi family members have to say, though. Listen it. देखिए, मैं ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है। ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। मैं आदमपुर हलके की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम पर पुनः एक बार हमेशा की तरह लगातार 15वीं बार हम पर विश्वास जताया। रिजल्ट सब कुछ कह चुका है, और ये कहते थे कि ये तो सिर्फ कांग्रेस की सीट रही है, तो आपने देख लिया। तो ये आदमपुर हल्का स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की देन है, उनका घर है, उनका गढ़ है, और ये हमेशा ये गढ़ बल्कि और मजबूत हुआ है पहले से। चुनाव रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो कल से पूर्ण रूप से काम आदमपुर के जो रुके हुए थे सब शुरू हो जाएंगे। हमारे परिवार के सदस्य सभी बहुत जोश के साथ यहाँ इकट्ठे हो रखे, तो हम पहले मंदिर जाएंगे, चौधरी भजनलाल जी की समाधि, वहाँ से भव्य आशीर्वाद लेगा, उसके बाद आदमपुर मंडी में सभी का धन्यवाद करने निकलेंगे।